A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Respect students. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to discuss the more standard of the Porse and his elephant of class 8th English, for which I am here. Respect students, we have read three stanzas of this lesson, and today we are going to read more about it. The thing what we learn from the past three stanzas, we learn that it is a tale about a king. It is a tale about a king and his elephant, who were fighting, who were waiting for their enemy on the bank of the Jahlim. And this is the name of this king is Porse, and he is waiting with his army on the one bank of the river Jahlim. And on the another side there is a king named Alexander the Great, who is waiting with his armaments and ammunition and other various things which are required for the war on the other bank of the river. So today we have to read about the more things what happened in this poem, which is written by Mary Dobson. So we will go through the sentences. Fires raged the fight, it was hard to tell what would you betide, and they fought the more till from his elephant sudden fell Porus the king, who was wounded sore. What happened here? The fires means angry or anger. We can say raged, show great anger. बहुत गुस्सा दिखाना, बहुत गुस्सा चल रहा था दोनों साइड से. वहाँ पर भी उस तरफ से भी गुस्सा हो रहा था, इस तरफ से भी गुस्सा हो रहा था. That we will not leave you until we make big loss to you on the other side. And the same other side was telling to this side that we will not leave you until and unless we will make you people feel very bad in a condition where where you will leave this battlefield. They were roaring with each other. They were roaring to each other that we will do this and that on the both sides, whether it was this Alexander the Great or whether it was the Porse, the second king. What happened? There was a great anger on the both sides to fight with each other. It was hard to tell. This is not easy to tell that what kind of anger were both sides. इस बात को कहा नहीं जा सकता कि कितना गुस्सा था वो कितना था, दोनों साइड से कितना गुस्सा था, ये कहने की बात नहीं है. There were not words. The poet Mary Dobson says that I have no words to express these things, that how much the rage was there, how much this anger was there on the both sides, whether it was the side of this Alexander the Great or whether it was the side of the Porse. So what would be betide? Betide means happen. No one was knowing that what is going to happen. No one was knowing that what is going to happen in this battlefield, where the two great kings were eager to fight with each other, and they fought the more. और यहाँ पर शायर ये कहना चाहता था कि उन्होंने लड़ाई जिस लड़ाई की हम बात कर रहे थे, जिस लड़ाई की हम मतलब सोच रहे थे कि इस हद तक की लड़ाई हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. उससे ज़्यादा सोचने की लेवल से ज़्यादा जो था, उससे ज़्यादा उन्होंने लड़ाई लड़ी, उससे ज़्यादा होलनाक लड़ाई थी. The fight was more and more terrible than the thinkings. At that very time, what the thinkers were thinking, that this fight will be like at this level and these were जो ये नुकसान होने वाले हैं, लेकिन उस लेवल से आगे की लड़ाई हो. ये कहने यहाँ पर इसको कह नहीं पा रहे हैं कि किस किस्म की लड़ाई हो रही थी और कितनी खतरनाक लड़ाई दो बादशाहों के दरमियान हो रही थी. Till from his elephant sudden fell. तब तक from his elephant, जब तक उसका जो एलिफेंट था उस वक्त तक लड़ाई बहुत गंभीर हो रही थी, बहुत खतरनाक लड़ाई हो रही थी. सडन फेल, अचानक क्या होता है कि उसका जो है एलिफेंट वो गिर जाता है. किसका? पोर्स का एलिफेंट. पोर्स द किंग, पोर्स जो बादशाह था,
who was wounded sore, जिसको बहुत, जो जख्मी हो चुका था, जिसके ऊपर बहुत, जिसकी जिस्म के ऊपर बहुत सारे जख्म थे और वो जख्मी हो चुका था, उस वक्त तक वो उसको मतलब शील्ड करता रहा, बचाता रहा, जब तक ना वो जिसका हाथी था, जब तक ना वो जमीन पर पड़ गया, मतलब जब तक ना वो गिर गया जमीन पर. Then did the elephant faithful beast. Then did the elephant. उसके बाद एलिफेंट क्या करता है? फेथफुल बीस्ट. यहाँ पर शायद इसको एक और लक़ब देता है, फेथफुल बीस्ट, यानी कि एक ऐसा जानवर जिस पर आप यकीन कर सकते हो, जिस पर आप भरोसा रख सकते हो कि भाई मुश्किल के वक्त में, एट द टाइम ऑफ हार्डशिप्स, दैट दिस एनिमल विल ट्राई टू विल सेव एनीबडी हु इज मेकिंग केयर ऑफ हिम इन एट एनी टाइम. जिस जो हमने घर में ये जो एनिमल्स पाले रखे होते हैं, जिनको हम डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं या पेट्स कहते हैं, वो किस हद तक हमारे जो है हमारे हक में बात, मतलब हमारे हक की तरफ जो हमारा जो है बचाने की कोशिश में किस हद तक जा सकते हैं. ये यहाँ पर कहता है, मैरी डॉब्सन कहती है कि दिस जो है यो इसका रोल था एलिफेंट का, एवन कि दिस इज बीस्ट, ये जंगली है, ये मतलब वाइल्ड एनिमल भी है और बीस्ट भी है, लेकिन फेथफुल है. फेथफुल मैंने कि भरोसा रखने वाला, जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है. फॉर हिज डीप डिप्ले, यहाँ पर इसको अगर हम दूसरे एंगल से भी देखेंगे, दिस मैरी डॉब्सन इज ट्राइंग टू से समथिंग एल्स टू वी पीपल, दैट इफ वी आर द ह्यूमंस वी आर नॉट फेथफुल टू ईच अदर एंड वी आर नॉट in position to make faith with on each others, because most of the people among we people are faithless and they cannot be trusted. But this is beast but can be trusted. This is the tangent to we people that think, where are you? These animals are faithful and they are saving their loved ones. जो इनको पालते हैं, जो इनको मतलब जो भी इनका की ज़रूरत है उनको पूरा करते हैं, उनके लिए कितने फेथफुल होते हैं. लेकिन हम इंसानों की बात करेंगे तो हम शाम को उसी थाली में खाते हैं और सुबह उसी थाली को छेद कर देते हैं. तो इससे बात से ये बात साबित होती है कि यहाँ पर मैरी डॉब्सन इस बात को साबित करना चाहती है कि दैट बीस्ट्स आर मोर दिस फेथफुल देन वी पीपल इन अदर टर्म्स. फॉर हिज डिफेंस प्ले अ गैलेंट पार्ट. उस क्या करता है यहाँ पर, वो डिफेंस के लिए जो अपना उसका जो है अपना उसका जो साथी है जिसके साथ वो रहता था उस बादशाह के साथ, उसको बचाने के लिए वो एक बहुत बड़ा, गैलेंट मीन्स बिग या ब्रेव हम कह सकते हैं. गैलेंट मीन्स ब्रेव, एक बहादुराना पार्ट वहाँ पर प्ले करता है कि भाई मुझे अपने जो है अपना जो मालिक है उसको बचाना है. स्टैंडिंग अबो हिम, उसके ऊपर बैठ जाता है और उसके ऊपर बैठ जाता है. वाई? ही इज सेविंग हिम फ्रॉम फ्रॉम द एंगर ऑफ द अदर साइडर्स किंग, जिसका नाम था अलेक्जेंडर ग्रेट, जो दूसरी तरफ से बादशाह हमले करता था, उन हमलों से बचाने के लिए अपने मालिक के ऊपर, पोरस के ऊपर बैठ जाता है ताकि उसको बचा सके. ही आर द बेस्ट लॉस. एरर मीन्स यहाँ पर आपने को पढ़ना है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ एवर. ये है एरर जो है यहाँ पर, ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है किसका? एवर का. लेस्ट एरर द लॉस्ट, तब तक जब तक उसके जान में जान थी तब तक उसके ऊपर बैठ जाता है, उसको बचाता है. हार्म शुड असेल हिम, ये इस वजह से बैठ जाता है कि जो हार्म, जो ऊपर वहां से नुकसान आ रहा है, जो वहां से तीरें आ रही हैं, वो जहाँ से गोलियां आ रही हैं, वहां से हथियारों की बूछाड़ हो रही है, गोलियों की बूछाड़ हो, जो भी उस वक्त का सामान रहा हो उसकी बूछाड़ होगी, उससे बचने के लिए अपने मालिक के ऊपर बैठ जाता है और ये बात अपने मन में बिठा लेता है कि भाई जितना से जितना मैं इसको बचा सकूं, जितना मैं कम से कम नुकसान कर सकता हूँ, इसको होने दे पाऊँ, उस हिसाब से वहाँ पर बैठ जाता है. असेल मीन्स टू अटैक समबडी, टू अटैक from below or dart. An object, dart means an object like a small arrow. वो small arrow मतलब जो तीर होता है, तीरों से बचाता है अपने आप. Dart means something like that. Trumpeting loudly. Trumpeting means attractive in a way that makes you want to do or have something. Loudly कर रहा है, चिल्ला रहा है, he held at bay, और उसी जगह पर बैठ जाता है. Foreman means
फोरमैन मीन्स द फर्स्ट और चीफ सोल्जर इन आर्मी. आर्मी में जो सबसे फर्स्ट होता है या चीफ होता है उसको फोरमैन कहते हैं. विथ एरो और स्पीयर और स्वर्ड, ये उसी साथ आता है. फोरमैन के हाथ में था एरो था, विथ एरो तीर होता है और स्पेयर, और दीज आर द काइंड्स ऑफ एमिनेशन एट दैट वेरी टाइम. उस वक्त के ये जो है एमिनेशन के नाम हैं. स्वॉर्ड तलवार होती है, आपने देखी होगी. चैलेंजर देम ऑल टू अप्रोच देयर प्रे, डियर्ड देम टू इंजर हिज वांटेड लॉर्ड. और यहाँ पे इनको डियर्ड करता है, आप उनको मतलब जुर्त, उनको मतलब ललकारता है. इसको हम ललकार कह सकते हैं. ललकारता है कि भाई आओ, मेरे मालिक को कोई नुकसान पहुंचा सकता है, आओ. अगर किसी के अंदर हिम्मत है, इफ एनीवन इज डेयरिंग टू मेक हार्म टू माय मास्टर, आई एम हियर, आई विल नॉट नो वन, आई विल, किसी को मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक न मैं अपने जो है मालिक की जान बचा सकूं या उसको प्रोटेक्ट कर सकूं. डियर करता है उनको ललकारता है. देन एट द लास्ट, वहां पर क्या हो जाता है आखिर में, एट लास्ट व्हाट हैपेंड डियर विथ हिज माइटी ट्रंक. ट्रंक जो बड़ा एनिमल का जो सब बड़ा सामने का लंबा होता है उसका, हाथी का, लिफ्टेड हिम टेंडरली ऑन हिज हेड, उसको लिफ्ट करता है टेंडरली, बड़े नाजुक अंदाज में उठाता है. जैसे हम किसी चीज को, जो छोटा बच्चा उसको हम उठाते हैं नाजुक अंदाज में, भाई कहीं इसको बाजू को न लग जाए, टांग को न लग जाए, या पेट को, किसी भी चीज को ना, जैसे बच्चे को हम जैसे इंसान उठाते हैं, इसी तरह बच्चे को जैसे उठाते हैं टेंडरली, उसी तरह इसने अपने मालिक को, पोरस को उठाया टेंडरली. एंड देन व्हाट, बोर हिम इन अनकॉन्शियस फेंटनेस संक तो गो डाउन लिक्विड, जो नीचे पड़ी थी ना खून वगैरह, उसके ऊपर से उठाता है. वायर ही कुड रेस्ट विथ फियर और डेड, जहाँ वो रेस्ट करा सके उसको, फियर और डेड. फियर मीन्स खोप, ड्रेड मीन्स जो भूलनाक वहाँ पर वाक़ा हो रहा था उसकी बात. मीन्स समथिंग लाइक दैट व्हेन वी आर लूजिंग समवन, किसी को हम जब खो रहे होते हैं तो वी मेक अ साउंड, दैट इज These dumb things that by cry and pant. अब रोने लगा. They too can love. ये बोलता है जो बादशाह वहां पर पोर से, क्या कहता है? They कौन? Animals. Refers to the animals. Too can love. Too ये भी मोहब्बत कर सकते हैं for God में, जैसा कि अल्लाह ने इनको ऐसा बनाया है. कुदरत के बनाने वाले, कुदरत ने इनको ऐसा बनाया, अल्लाह ने इनको, गॉड ने इनको ऐसा बनाया है. So that's why they can love. They have the love in their heart. They can love to the world. They can love to the man folk, woman folk, whosoever is on their side, whosoever is on this universe. These beasts are also in a position they can love. Because why? Because God has made them like this. खुदा ने इनको ऐसा बनाया है. Porus was saved. इस तरह से क्या होता है आखिर में, पोरस को बचाया जाता है. But his elephant, मगर उसका जो एलिफेंट है, डाइड फ्रॉम हिज स्वॉर्ड, उसकी तलवार से मर जाता है. 10 द लीजेंड्स को. इसी तरह से जो लीजेंड्स हैं उनकी सिर्फ दास्तानें रह जाती हैं. द लीजेंड्स मीन्स द हीरोज, जिन्होंने बहुत बड़े पार्ट खेले हैं इस दुनिया में. इंसानी दुनिया को आसान बनाने के लिए जो बड़े बड़े लोग रहे हैं उनको उन सबको हम लीजेंड्स कहते हैं. चाहे वो मेडिकल साइंस में हो, चाहे वो मैथमेटिक्स में हो, चाहे वो जंगों में उसने किया हो, चाहे किसी भी फील्ड में जो इंसानी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए कोई भी काम किया हो, उसको हम लीजेंड ही कह सकते हैं. किसी ने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया होगा. सम वर्ड्स आर हियर, एंड हमने पहले भी पढ़े थे ये, अब आज भी पढ़ेंगे. बैलड मीन्स ए स्टोरी टोल्ड इन वर्स, जो वर्स में कही गई स्टोरी हो उसको बैलड कहते हैं. फो मीन्स एनमी. बैटल प्राइड मीन्स मार्शल ग्लोरी, जो जंग जीतने के बाद खुशियाँ मनाई जाती हैं उसको मार्शल ग्लोरी. In a state in dignified manner. In state means in a dignified manner. Unbroken rank close order that is difficult for enemy break through. जैसे हाथियों की एक कतार लगाई जाती है, उसको ब्रेक करना का बहुत मुश्किल होता है. That is called unbroken rank. Fray means attack. Rage means anger. Betide means to happen, जो होने वाला हो. Gallant means brave. Trumpet means of a large animal, जो हाथी का बड़ा रहता है, या किसी बड़ी जानवर का रहता है. हाथी ही हमारा इधर आज सबसे बड़ा है, लेकिन उसे भी जिराफ है. लेकिन हाथी का जो ट्रम्पेट वो सामने से रहता है, जिसको वो ऐसे उठाकर
کام میں لا سکتا ہے تو اس کو بھی ٹرمپٹ کہہ سکتے ہیں. فور مین مینس دا فرسٹ اور چیف ان دا آرمی. جو آرمی کا سب سے بڑا ادھیکاری رہتا ہے, جو آرمی کا سب سے بڑا آفیسر رہتا ہے یا سب سے پہلے رہتا ہے, اس کو چیف کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں فور مین. ہولڈ ایٹ بے, کیپ بیک, پیچھے تھوڑا لے جانا. ہولڈ ایٹ بے, اپنی جگہ پر سے تھوڑا پیچھے ہٹ جانا. پینٹ مینس ٹو بریتھ ہیویلی, مشکل سے سانس اندر جانا. دیٹ از کالڈ پینٹ. دیٹ از کالڈ پینٹ. مشکل سے جب ہم کبھی بھی ہمیں چھاتی کی کوئی بیماری ہوتی ہے, کسی کو بھی اس کو سانس لینے میں تکلیف ہو جائے, دیٹ از کالڈ پینٹ. اور اس کا الگ بھی نام ہے, ریسپریٹری پرابلم بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. اس کو یو ٹی آر آئی بھی, اپر ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشن, یا مطلب بی ٹی آر آئی, بلو ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشن بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن یہاں پر انگلش میں اس کا میننگ ہے کہ پینٹ مینس بریتھ ہیویلی, مشکل سے سانس لینا. جب کوئی آدمی مر جاتا ہے نا, اس کا مرنے کے قابل نزدیک ہو, and he is not in position to breathe very easily, and that very time we can say that sound which he makes is called pant. Legend, a story or set of stories from ancient time. Legend. Error means contract form. And in tomorrow's lesson, tomorrow's period, we will try to find out the answers of these questions. And unfortunately, we have not this marker board. Inshallah ta'ala, I will try to do it on computer or so wheresoever is possible. Thank you very much.